Hello my dear students, welcome back to our YouTube channel Tech English. Today I will teach you chapter A Triumph of Surgery from the book Footprints Without Feet. So A Triumph of Surgery is a very interesting story that is written by James Herriot. It is based on an episode which reflects the silly and sentimental behavior of a rich woman towards her pet dog named Tricky. And the name of the mistress is Mrs. Pumphrey. She pampers and overfeeds her dog. As a consequence, the dog falls seriously ill and has to be sent to a veterinary surgeon. The story tells us that how the dog is cured without an operation. The whole narrative is full of fun and humor. So what we have seen that in this story, the whole story revolves around a surgery and the triumph of surgery. And it is an ironical statement, ironical title you can say, because there is not a single surgery taken place in this story. So this was all about the summary and theme of the chapter. Now let's discuss about the author of the story. So author is James Herriot, who was a well-known British veterinary surgeon and writer. He is best known for writing a series of 8 books set in the 1930s to 1950s Yorkshire Dales about animals and their owners. So there are some multiple television and film adaptation of Wright's book also. For example, All Creatures Great and Small and BBC television series of the same name, which ran for a total of 90 episodes. This was all about the author. Now let's see the theme. The theme of this story is about the blind love which we possess for the one whom we love the most. For example, Mrs. Pumphrey was having extreme love, extreme care for her dog Tricky, and she had no idea that her blind and extreme love for her dog Tricky took him to trouble. So this was all about the theme. Now let's see the explanation of the chapter. I was really worried about Tricky this time. तो यहाँ पे narrator कहते हैं, जेम्स हैरियट कहते हैं कि मैं इस बार ट्रिकी के लिए बहुत ज़्यादा वरीड था. तो जेम्स हैरियट ही नरेट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे आई प्रोनाउन का यूज़ हुआ है. और दिस टाइम यहाँ पे क्यों यूज़ हुआ है? क्योंकि वो ट्रिकी को पहले से जानते थे. आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस. तो अब क्या बताते हैं जेम्स हैरियट कि मैंने अपनी कार को रोक ली. पुल्ड अप मीन्स टू स्टॉप. जब उन्होंने मिसेस पम्फ्री को अपने डॉग के साथ देखा, तो मिसेस पम्फ्री और डॉग दोनों स्ट्रीट पे जा रहे थे और उन्होंने जैसे ही डॉग को देखा तो वो शॉक्ड हो गए उसके अपीयरेंस को देख के. आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस. ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर. तो वो क्यों शॉक्ड हो गए? क्योंकि ट्रिकी का अपीयरेंस कुछ ज़्यादा ही शॉकिंग था. वो बहुत ज़्यादा फैट हो गया था, जस्ट लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज. सो इट इज़ अ नॉन-वेजिटेरियन डिश फिल्ड विथ मीट विद अ लेग एट ईच कॉर्नर. ऐसा लग रहा था कि ही वॉज जस्ट लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज और उसके चारों कॉर्नर पे लेग लगे हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल द इमेज यू कैन सी हिज eyes bloodshot and rheumy stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. तो उसके आईज जो थी वो बहुत रेड हो गई थी और वाटरी की थी और वो एकदम स्ट्रेट देख रहा था और उसकी जो टंग है वो उसके जॉज से बाहर निकली हुई थी. तो जब किसी की आईज रेड और वाटरी हो जाती तो उससे समझ में आता है कि वो सिक है. तो सेम एज ट्रिकी के साथ भी था, वो बहुत ज़्यादा सिक था. मिसेस पम्फ्री हैसन टू एक्सप्लेन ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट. तो जैसे ही मिसेस पम्फ्री ने मिस्टर हैरियट को देखा, उन्होंने जल्दी से एक्सप्लेन किया. क्या कहा? कि वो बहुत ज़्यादा एनर्जी लेस था मिस्टर हैरियट. ही सीम टू हैव नो एनर्जी. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मॉल न्यूट्रिशन. तो उन्हें क्या लगा कि मे बी शायद उसे फूड की कमी होगी, मॉल न्यूट्रिशन से वो सफ़र कर रहा है. सो आई हैड बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील टू बिल्ड हिम अप. तो इसलिए वो मील्स के बीच बीच में, खाने के बीच बीच में उसे कुछ एक्स्ट्रा फूड भी देती थी. फॉर एग्जाम्पल malt, cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. तो उसे क्या क्या देती थी? खाने के बीच में उसे malt देती थी, cod liver oil देती थी और रात को सोते वक्त वो क्या देती थी? Horlicks देती थी. Nothing much really. और उन्होंने क्या कहा कि इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं देती थी. तो हम ये देख रहे हैं कि मिसेस पैम्फ्री के स्टेटमेंट से ही हम देख रहे हैं कि वो कुछ ज़्यादा ही ओवरफीड कर रही थी अपने डॉग को. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. अब मिस्टर हैरियट क्या बोलते हैं कि क्या आपने स्वीट थिंग्स को उसके मील से रिड्यूस किया, उसके मील से हटाया, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था. तो इसका मतलब हुआ कि मिसेस पम्फ्री ऑलरेडी विजिट कर चुकी हैं और
मिस्टर हैरियट ने उन्हें पहले भी कुछ सजेशन दिए हैं। Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak that I had to relent. उन्होंने क्या कहा, यस मैंने कुछ दिन किया था, लेकिन वो इतना वीक लग रहा था कि मुझे अपना ये हार्श एटीट्यूड छोड़ना पड़ा, मुझे अपना स्ट्रिक्टनेस छोड़ना पड़ा। He does love cream cakes and chocolates, so I can't bear to refuse him. तो क्या कहती हैं कि ट्रिकी को क्रीम केक्स और चॉकलेट इतनी ज़्यादा पसंद है कि मैं उसे मना नहीं कर सकती हूँ। I looked down again at the little dog. That was the trouble. तो मिस्टर हैरियट ने दोबारा से ट्रिकी को देखा और वो क्या सोचने लगे कि क्या प्रॉब्लम है। दैट वॉज द प्रॉब्लम, मतलब यही परेशानी। क्या परेशानी है? ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, कि ट्रिकी बहुत ज़्यादा ग्रीडी है। ट्रिकी की यही एक कमी है कि वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी है। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, और वो कभी भी खाने को मना नहीं करता है। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे एंड नाइट, और उसको अगर आप कभी भी खाना दिया जाए तो वो किसी भी टाइम खा लेगा, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो। एंड आई वॉन्टेड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्री हैड नॉट मैंशन, और मिस्टर हैरियट सोचने लगे कि अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिसेस पम्फ्री ट्रिकी को खिलाती हैं और उन्होंने उसे मेंशन भी नहीं किया है। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? अब नेक्स्ट इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि क्या आप ट्रिकी को एक्सरसाइज करवा रही हैं? वेल ही हैड हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, तो उन्होंने क्या कहा कि ये थोड़ा बहुत वॉक कराते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। बट हॉडकिन द गार्डनर हैड बीन विथ लम्बागो, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, तो इनके जो गार्डनर है हॉडकिन जो है उसे प्रॉब्लम हो गई। लम्बागो क्या होता है? इट इज़ अ प्रॉब्लम दैट इज रिलेटेड टू पेन इन द मसल्स एंड द जॉइंट्स ऑफ द लोअर बैक एज यू कैन सी द इमेज। तो इन्होंने कहा कि मेरे गार्डनर को अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए रिंग थ्रोइंग का गेम नहीं करवा रहा। रिंग थ्रोइंग एज यू कैन सी द इमेज, सो रिंग थ्रोइंग की जो एक्सरसाइज है वो नहीं कराते, थोड़ा बहुत वॉक करा देते हैं। आई ट्राई टू साउंड सीवियर, तो अब मिस्टर हैरियट थोड़ा सा सीरियस हो गए। नाउ आई रियली मीन दिस, कि मैं अब जो बात कह रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट नाउ एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। अब उन्होंने क्या कहा कि अगर आप उसके मील को, अगर आप उसके फूड को कट नहीं करते, अगर आप उसके फूड में थोड़ा सा जो भी डिशेज आप खिलाते, जो भी आप खाना खिलाते उसको नहीं कम करते हैं और उसको एक्सरसाइज नहीं कराते ज़्यादा, तो वाकई में वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। अब क्या बोलते हैं कि आपको खुद को स्ट्रिक्ट बनाना पड़ेगा, आपको अपना हार्ट को हार्ड करना पड़ेगा। मीन्स आपको जो इमोशनल हो रहे हो उसे आप इमोशन से काम ना लें, बल्कि आप स्ट्रिक्ट होके उसे एक स्ट्रिक्ट डाइट दें, अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा इल हो जाएगा अगर आप उसे ओवर फीड कराती रहेंगी। मिसेस पम्फ्री रंग हर हैंड, ओ आई विल मिस्टर हैरियट, तो मिसेस पम्फ्री ने अपने हाथों को मूव करते हुए कहा कि यस मैं ऐसा करूँगी, मैं आपकी सजेशन को फॉलो करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। अब क्या कहती थी मिसेस पम्फ्री कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे लिए करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मेरे लिए ट्रिकी को खाना से मना करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वो जो भी डिमांड करता है मैं मना नहीं कर पाती हूँ। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलॉन्ग द रोड एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजाइम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, तो वो अब रोड से चली गई, अपना हेड डाउन करते हुए चली गई। ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर ने जो भी उन्हें नया रूटीन बताया है वो उसे तुरंत ही फॉलो करने लगेंगी, पर ऐसा वो नहीं करती हैं। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, प्रोग्रेस मतलब उनके जाने को, तो अब मिस्टर हैरियट उनको देखते रहे, बहुत ध्यान से देख रहे थे। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग, टॉटरिंग क्या होता है? मूव इन अ फीबल और अनस्टेडी वे, जब बहुत किसी को बहुत वीकनेस लगती है तो वो बहुत प्रॉपरली वॉक नहीं कर पाता, तो इसी तरह ट्रिकी के साथ भी था। ट्रिकी सिक था, ही वॉज नॉट वेल, तो बहुत वीकली वो बहुत अनस्टेडी वे में वो चल रहा था। अलॉन्ग इन हिज लिटिल tweed coat he had a whole wardrobe of these coats, तो along in his little tweed coat means tweed coat as you can see the image, ये है tweed coat, तो वो उसने अपना tweed coat पहना हुआ था और वो बहुत वीकनेस के साथ चल रहा था। he had a whole wardrobe of these coats, अब क्या कहते हैं मिस्टर हैरियट कि उसके पास इन कोट्स का एक बहुत बड़ा वॉर्ड्रोब है। for the cold weather and a rain coat for the wet days, अब उसके पास कोल्ड वेदर के लिए अलग ट्वीटेड कोट थे और रेन कोट्स भी थे उसके पास, जो कि वेट डेज के लिए, रेनी डेज के लिए उसके पास रेन कोट थे
और कोल्ड वेदर के लिए भी उसके पास अलग से कोर्स थे। ही स्ट्रगल ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, तो वो स्ट्रगल कर रहा था। ड्रूपिंग मतलब बेंड करना, हार्नेस क्या होता है, ये एज यू कैन सी द इमेज, जैसे जिसमें डॉग को बांधा जाता है, तो हार्नेस से वो स्ट्रगल कर रहा था, ऐसा लग रहा था, क्योंकि मिसेस पम्फ्री ने उसको पकड़ा हुआ था हार्नेस से और वो बिल्कुल मूव ही नहीं कर पा रहा था, उसके अंदर कोई एनर्जी ही नहीं थी। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्री। तो अब जेम्स हैरिट ने सोचा कि ट्रिकी की ऐसी कंडीशन देख के ऐसा लगता नहीं है कि उन्हें काफ़ी टाइम लगेगा मिसेस पम्फ्री की कॉल आने में, या मिसेस पम्फ्री उन्हें विजिट करेंगी तो उसमें टाइम नहीं लगेगा, जल्दी ही वो उन्हें विजिट करेंगी। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, तो जैसा कि मिस्टर हैरिट ने प्रेडिक्ट किया था वैसा ही हुआ, उनका कॉल आ गया कुछ ही दिन में। मिसेस पम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉयड मीन एक्सट्रीमली वरीड, वो बहुत ज़्यादा वरीड थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ खा नहीं रहा था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, इवन वो अपनी फेवरेट डिशेज को भी मना कर रहा था, वो नहीं खा रहा था और उसके अलावा उससे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पैंटिंग, रग मीन्स क्या होता है, मैट, तो वो पूरा टाइम एक रग पे लेटा रहता है, और पैंटिंग मतलब हाफना, तो पैंटिंग मीन्स हाफना, तो वो हाफता रहता है और एक रग पे लेटा रहता है। डिडंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, वो वॉक के लिए भी नहीं जाना चाहता। डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, ना वो किसी काम को करने में इंटरेस्टेड है। तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा ट्रिकी इनएक्टिव हो गया है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड। तो मिस्टर हैरिट इस बात के लिए पहले से ही तैयार थे, तो उन्होंने अपने आप पहले से ही प्लानिंग कर ली थी और उन्होंने ये सोचा कि ट्रिकी को सही करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसे कुछ दिन मिसेस पम्फ्री के पास से हटा दिया जाए, उसे कुछ दिन के लिए घर से बाहर निकाला जाए। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation। तो उन्होंने क्या सजेशन दिया, उन्होंने ये सजेशन दिया मिसेस पम्फ्री को कि उसे कुछ दिन के लिए हॉस्पिटलाइज किया जाए। कब तक के लिए, फोर्टनाइट। फोर्टनाइट क्या होता है, 2 वीक्स, तो वहाँ पे उसे ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। तो यहाँ पे इस पेज से कई क्वेश्चन बनते हैं कि ट्रिकी की सिचुएशन क्यों ख़राब थी, ट्रिकी की कंडीशन क्यों ख़राब थी और मिस्टर हैरियट ने मिस पम्फ्री को क्या सजेशन दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ मैंने वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून मतलब फेंट ड्यू टू एक्सट्रीम इमोशन, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, बहुत ज़्यादा अटैच थी, तो ऐसा लग रहा था कि वो इस बात को सुन के बेहोश सी हो गई हैं, उन्हें चक्कर आ गया। क्यों, क्योंकि उन्हें ट्रिकी से अलग रहना पड़ता। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिडंट सी हर एवरी डे, और उन्हें इस बात की पूरी श्योरिटी थी कि अगर ट्रिकी उन्हें कुछ दिन नहीं देखेगा तो वो उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करेगा और वो मर जाएगा। ऐसा उनका कहना था कि अगर वो उसे अगर ट्रिकी मिसेस पम्फ्री को रोज़ नहीं देखेगा तो उन्हें इतना मिस करेगा कि वो मर जाएगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मिस्टर हैरियट बिल्कुल भी इस बात से नहीं मूव हुए, वो अपने डिसीजन पे अडिग रहे। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, क्योंकि ट्रिकी बहुत ज़्यादा इल था और यही एक तरीका था कि उसे सही किया जाए, और वो तरीका ये था कि उसे मिसेस पम्फ्री से दूर रखे, क्योंकि मिसेस पम्फ्री मिस्टर हैरियट के सजेशन को मानेंगी नहीं, उसे ओवरफीड करेंगी और इस कारण उसकी कंडीशन जो है और ज़्यादा वर्स हो जाएगी। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रीज वेलिंग। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि बेहतर यही है कि मैं बिना किसी देरी के उसे यहाँ से निकाल लूँ और मिसेस पम्फ्री के रोने को अवॉइड कर दूँ, क्योंकि मिसेस पम्फ्री बहुत ज़्यादा रो रही थी, शी वॉज क्राइंग विद ग्रीफ। आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। तो अब डॉक्टर ने डॉग को एक ब्लैंकेट में रैप किया और उसे लेके कार की तरफ चलने लगे। उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया मिसेस पम्फ्री के रोने पे। The entire staff was roused and made rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl। अब क्या हुआ, क्योंकि ट्रिकी जाने वाला था तो अब उसके पास जो जो सामान था, जो जो उसके खाने पीने की चीज़ें थी, जो जो उसका सामान था, वो सब अरेंज किया जाने लगा, इकट्ठा किया जाने लगा कि वो डॉक्टर को दे दिया जाए। तो पूरा जो भी स्टाफ मिसेस पम्फ्री का काम करता था वो काम करने लगा। क्या करने लगा, जो मेज थी वो भागने लगी और उसका सारा सामान कलेक्ट करने लगी, उसका डे का बेड, नाइट बेड, उसके जो फेवरेट कुशन हैं, उसके टॉयज, रबर रिंग्स ये है, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल,
तो उसके ब्रेकफास्ट का, लंच का और नाइट का, डिनर का जो उसका बाउल था वो सब अलग था, उसके चॉइस थी। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इस सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि मिसेस पंफ्री काफ़ी ज़्यादा रिच लेडी हैं और उनका जो डॉग है वो ओवर पैम्फर्ड, उसे बहुत ज़्यादा पैम्फर किया जा रहा है। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टेप आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। मिस्टर हैरिट ने जब ये देखा कि इतना सारा सामान है ट्रिकी का, तो उन्हें समझ आ गया कि उनकी कार में इतना सारा सामान नहीं आ पाएगा, तो उन्होंने ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही आगे बढ़े इन्होंने क्या देखा, मिसेस पंफ्री विद द डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोर्स थ्रू द विंडो। इन्होंने देखा कि मिसेस पंफ्री काफ़ी ज़्यादा रो रही हैं और उन्होंने जल्दी से एक हाथ भर के खूब सारा कोर्स जो थे, जो उनके हाथों में आ सकते थे, उन्होंने मिस्टर हैरिट की कार के थ्रू अंदर डाल दिया। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव। टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव मीन्स मोड़। तो अब मिस्टर हैरिट बोल रहे हैं कि जैसे ही मोड़ आने वाला था, मैं पीछे देखने लगा, मिरर से मैं देखने लगा, तो क्या इन्होंने देखा कि सब कोई रो रहे हैं। एवरीवन वाज इन टीयर्स, मतलब सब लोग रो रहे थे। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। तो अब जब ये आगे बढ़ गए तो उन्होंने क्या देखा, इन्होंने अब ट्रिकी के तरफ देखा। पैथेटिक मीन्स बहुत मिजरेबल कंडीशन थी। उन्होंने क्या देखा कि जो ट्रिकी था वो गैस्प कर रहा था, मतलब सांस लेने की कोशिश कर रहा था, उसे ब्रीदिंग नहीं हो रही थी प्रॉपर। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। वैग मतलब टू मूव। तो अब मिस्टर हैरिट ने ट्रिकी के हेड को पैट किया, थपथपाया, और जब उसको थपथपाया तो ट्रिकी ने भी अपनी टेल को मूव करने की कोशिश करी। तो यहाँ पे ब्रेव एफर्ट इसीलिए दिया क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, वो कोशिश कर रहा था। तो ऐसा होता है कि जब डॉग को थपथपाया जाता है, डॉग को थोड़ा सा भी, डॉग से थोड़ा अफेक्शन दिखाते तो अपनी टेल को मूव करते हैं, तो सेम एज ट्रिकी के साथ भी था। अब क्या कहा मिस्टर हैरिट ने, पुअर ओल्ड लैड आई सेड यू हैवंट किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। क्या कहा इन्होंने, पुअर ओल्ड लैड किसे बोला, ट्रिकी को, कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, लेकिन मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा क्या इलाज है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास तुम्हारा इलाज है। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज राउंड मी। अब क्या बोल रहे हैं, सर्जरी मतलब यहाँ पे जो उनका हॉस्पिटल है जहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, तो ये बोल रहे हैं कि जब ये पहुँचे, सर्जरी मतलब जो हॉस्पिटल में पहुँचे, तो हाउस होल्ड डॉग्स, जो भी डॉग्स थे, वो इनके चारों तरफ घूमने लगे। तो जैसे जो भी डॉग के ओनर होते हैं या डॉग जिनसे बहुत ज़्यादा घुले मिले रहते हैं, तो जब भी वो पहुँचते हैं उनके तो आसपास डॉग्स मूव करने लगते हैं। इसी तरह मिस्टर हैरिट के साथ भी हुआ। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज। पैक क्या होता है, ग्रुप ऑफ डॉग्स। तो यहाँ पे ट्रिकी ने जब उन लोगों को देखा तो कोई उसने रिएक्ट नहीं किया, बिल्कुल डल आइज थे, उनको देख रहा था। व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। जब उसे कार से बाहर निकाल के कारपेट पे रखा गया तो एकदम मोशनलेस था, इनएक्टिव था, और वो डॉग्स को देख के कोई भी रिएक्ट नहीं किया। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। अब जो दूसरे डॉग थे, जो ग्रुप के दूसरे डॉग थे, वो ट्रिकी को स्निफ करने लगे। स्निफ मतलब क्या होता है, स्मेल करना। वो उसके चारों तरफ स्मेल करने लगे और कुछ देर स्मेल करने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि ट्रिकी बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है और उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया और उसके बाद उसे इग्नोर कर दिया। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट। तो अभी मिस्टर हैरिट ने क्या कहा, मिस्टर हैरिट ने ट्रिकी के लिए भी एक वार्म लूज बॉक्स बनाया और उन्होंने वो बॉक्स कहाँ रखा, उन्होंने वो जो बेड बनाया था बॉक्स का, उन्होंने वो अदर डॉग्स के बेड के पास ही रख दिया जहाँ वो डॉग्स सोते थे। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम। और लगभग दो दिन उन्होंने उस पर नज़र रखी। केप्ट एन आई मतलब उस पर नज़र रखना, ठीक है। तो उन्होंने नज़र रखी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। और उसको बिल्कुल भी फूड नहीं दिया बल्कि उसे बहुत सारा पानी दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि उसने कैसे, मिस्टर हैरिट ने उसका कैसे इलाज किया, कैसे ट्रीटमेंट किया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि उसको उन्होंने कुछ भी खाना नहीं दिया 2 दिन तक, बस पानी दिया, बहुत सारा पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग। और सेकेंड डे के लास्ट में, सेकेंड डे के एंड में
उसने थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया, उसने आसपास में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। तो अब थर्ड डे वो क्या करने लगा, थर्ड डे उसे जब थोड़ा सा बेहतर लगा तो जब भी वो डॉग्स की उसने आवाज़ सुनी तो वो भी विम्फर्ड करने लगा। ओके, व्हेन आई ओपन द डोर ट्रिकी ट्रॉटेड आउट। अब जब मिस्टर हेरियट ने डोर ओपन करके देखा तो उन्होंने क्या देखा कि ट्रिकी जो है वो जल्दी से बाहर निकला, तेजी से बाहर निकला। ट्रॉटेड मीन्स वॉकड आउट ब्रिस्कली एंड वॉज इमीडिएटली इंजल्ड बाई जो, इंजल्ड मीन्स सराउंडेड। और जैसे ही वो बाहर निकला उसे जो ने घेर लिया। जो क्या है, ग्रे हाउंड है। ग्रे हाउंड इस तरह का डॉग होता है। ओके, तो जो था और उसके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने ट्रिकी को घेर लिया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। अब उसे वो रोल करने लगे क्योंकि ट्रिकी बहुत ज़्यादा फैट था, तो वो उसे जब टच कर रहे थे उसके चारों तरफ जब घूम रहे थे तो टच होते ही वो रोल होने लगा। और उसको जब उन्होंने इंस्पेक्ट कर लिया उसके बाद डॉग्स कहाँ चले गए, गार्डन पे। ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विद हिम सरप्लस फैट। तब ट्रिकी भी उनका पीछा करने लगा, ट्रिकी भी उनके पीछे जाने लगा और वो जो चल रहा था ऐसा लग रहा था कि वो रोल हो रहा है बिकॉज ऑफ हिज एक्सेसिव वेट। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। अब उस दिन वो फीडिंग टाइम पे भी प्रेजेंट थे, जब डॉग्स को खाना खिलाया जाता है वो उस टाइम भी प्रेजेंट थे। उन्होंने क्या देखा, आई वॉच्ड व्हाइल ट्रिस्टन स्लॉप द फूड इनटू द वॉल। अब उन्होंने क्या देखा कि जब डॉग जो है जब खाना खाते तो आसपास गिरा देते हैं, तो ट्रिस्टन एक डॉग का नाम है। इन्होंने देखा कि ट्रिस्टन खाना जब खा रहा था बॉल में तो वो आसपास गिरा रहा था। एज यू कैन सी द इमेज, देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाई द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। और खाना खाते वक्त डॉग्स के बीच ऐसा लग रहा था कि रश हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है और वो जल्दी जल्दी खाना खा रहे थे बहुत स्पीड के साथ। वाई? Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of the meal. ऐसा डॉग इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो दूसरों से पीछे रह गए, अगर खाने में उनको लेट हो गई तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन उसे ही करना पड़ेगा खाने के लास्ट पार्ट में, क्योंकि जब डॉग एक बाउल से खा लेंगे उनका खाना ख़त्म हो जाएगा तो वो दूसरे का खाएंगे। तो इसलिए सब डॉग्स जल्दी जल्दी खाना खा रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उनका खाना बचा रहा तो बाकी जो अदर डॉग्स हैं वो उनसे कंपटीशन करेंगे। When they had finished, जब उन्होंने खाना ख़त्म कर लिया, ट्रिकी took a walk round the shining balls। तो ट्रिकी ने एक वॉक लिया, ट्रिकी मतलब चल के पहुंचा, राउंड द शाइनिंग बॉल, जो बाउल्स रखे थे उसके पास पहुंचा। लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम। तो उसने जो भी बाउल्स रखे थे उसमें एक दो बाउल्स को उसने लिक किया। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम। और फिर नेक्स्ट डे उसके लिए एक एक्स्ट्रा बाउल रखा गया। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट। जॉसलिंग मतलब धक्का मुक्की करना। तो जब मिस्टर हैरियट ने देखा कि ट्रिकी को भी अब इंटरेस्ट आ रहा है अपने सराउंडिंग में, वो थोड़ा सा एक्टिव हो रहा है और वो खाने के लिए भी अब थोड़ा इंटरेस्टेड हो गया है, तो उन्होंने उसके लिए एक एक्स्ट्रा बाउल रखा और उन्होंने ये भी देखा कि वो खाने के लिए अब एक दूसरे से धक्का मुक्की भी कर रहा है, एक दूसरे से खाने के लिए एफर्ट वो कर रहा है अपने खाने के लिए। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। रैपिड मीन्स फास्ट। अब उस दिन के बाद से उसकी जो प्रोग्रेस थी, उसकी जो रिकवरी थी वो फास्ट हो गई। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड। उसे कोई भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, उसे ना ही कोई मेडिसिन दी गई, ना ही किसी तरह की कोई सर्जरी की गई। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस। स्क्रीमेजेस में क्या होते हैं, फाइट्स। तो डॉग जो आपस में फाइट करते हैं उसे हम बोलते हैं स्क्रीमेजेस, ये आप ध्यान रखिएगा। तो अब उसे कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दी गई, बल्कि उसे जो भी डॉग्स थे उनके साथ इंक्लूड किया गया और वो अदर डॉग्स के साथ रन करता था। तो जब रन करता था तो उसकी बॉडी में क्या होता था, एक्सरसाइज होता था, जो कि उसकी बॉडी को नहीं मिलता था जब वो मिसेस पम्फ्री के साथ था। तो वो उनके साथ फ्रेंडली फाइट्स में इंक्लूड होता था, शामिल होता था। He discovered the joys of being bowled over, trampled on and squashed every few minutes। तो जब वो डॉग्स के साथ खेल रहा था, फाइट कर रहा था, उसे भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था जब उसे अदर डॉग्स धक्का दे रहे थे, क्रश कर रहे थे, स्क्वैश कर रहे थे। क्योंकि जब डॉग्स आपस में लड़ते हैं तो एक दूसरे को धक्का देते हैं, एक दूसरे को गिराते हैं, तो अब ट्रिकी को भी इसमें मज़ा आने लगा। He became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the shabby crew। तो अब जब उसे आसपास में इंटरेस्ट आने लगा, जब वो भी एक्टिव होकर फाइट्स में पार्ट लेने लगा, तो जो दूसरे डॉग्स थे, गैंग मतलब ये जो ग्रुप है, जो ग्रे हाउंड का जो ग्रुप था, उसके डॉग्स के लिए वो
एक्सेप्टेड मेंबर हो गया, उस ग्रुप में भी वो अब इंक्लूड हो गया। और वो कैसा था, अनलाइकली, मतलब वो डिफरेंट था। सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, उसके हेयर बहुत सिल्की थे, और जो बाकी डॉग्स थे वो कैसे थे, शैगी थे। हैविंग लॉन्ग थिक हेयर और फर, जो बाकी डॉग्स थे उनका जो हेयर थे वो शैगी था, उनका लुक शैगी था। और ट्रिकी कैसा था, बहुत सिल्की हेयर वाला था, छोटा सा था, तो वो अलग लग रहा था उन लोगों से। ही वॉज फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स, और बिल्कुल वो टाइगर की तरह अपने मील के लिए लड़ रहा था। अभी इसके पहले हमने क्या देखा कि वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था, उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं थी, लेकिन अब उसके अंदर एनर्जी आने लगी। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, और वो बाकी डॉग्स के साथ रात को हैन हाउस पे रैट्स की हंटिंग के लिए भी एक्टिवली पार्ट ले रहा था। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, और ट्रिकी ने ऐसा टाइम अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा, कभी भी उसने ऐसा टाइम एक्सपीरियंस नहीं किया। All the while Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background. Hover मतलब move over. तो पूरे टाइम मिसेस पम्फ्री अपने बैकग्राउंड में हॉवर करती रहती थी, मूव करती रहती थी। रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, बुलेटिन मतलब न्यूज़ है, इन्फॉर्मेशन। और एक दिन में लगभग 12 टाइम्स वो मिस्टर हेरिट को कॉल कर लेती थी ट्रिकी के हालचाल जानने के लिए कि ट्रिकी किस समय क्या कंडीशन है, क्या रिकवरी है, इसके लिए वो बार बार कॉल करती थी। I dodged the question about whether his questions were being turned regularly or his correct code worn according to weather. तब मिस्टर हेरिट ने उनके जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे, जो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं थे, जैसे कि उसका क्वेश्चन बदला गया कि नहीं बदला गया, उसका कोट अकॉर्डिंग टू वेदर उसे पहनाया जा रहा है कि नहीं पहनाया जा रहा है, ये सारे क्वेश्चन उन्होंने अवॉइड कर दिए और उनके एक क्वेश्चन का जवाब दिया। क्या कहा उन्होंने बताया, आई वॉज एबल टू टेल हर दैट लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर। उन्होंने बताया कि अब ट्रिकी आउट ऑफ डेंजर है, मतलब उसकी अब कंडीशन सही हो रही है। एंड कॉन्वेल्सेसिंग, कॉन्वेल्सेसिंग मतलब रिकवरिंग, उसकी जो हेल्थ है वो रिकवरी हो रही है बहुत तेजी से। द वर्ड कॉन्वेल्सेसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्री, और ये जो वर्ड है, ये वर्ड से ऐसा लगा कि मिसेस पम्फ्री को कुछ हो गया है, बहुत एनर्जी आ गई उनके अंदर। क्या हो गया, शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकीज इंस्टेंट। तो जैसे ही उन्हें पता चला कि ट्रिकी अब रिकवर हो रहा है तो तुरंत एक्टिव हो गए। वो अब क्या करने लगी, वो लगभग दिन में 2 डजन एग उसके लिए लाने लगी, जिससे ट्रिकी की हेल्थ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ट्रिकी की जो हेल्थ है वो जल्दी सही हो जाए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। तो कई दिनों तक मिस्टर हेरिट उनके पार्टनर थे जो भी वहाँ पे काम करते थे, वो सब ब्रेकफास्ट में रोज़ 2 egg खाते थे। इसका मतलब है कि वो ट्रिकी को नहीं देते थे, और उसका वजह यही है कि उन्हें पता था कि ट्रिकी को अगर वो देंगे तो दोबारा से उसकी कंडीशन ख़राब होगी, क्योंकि उसकी जो कंडीशन ख़राब हुई है, उसकी जो सिकनेस है, इलनेस है, उसका वजह ओवर फीडिंग ही है। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगैन टू अराइव द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन बिगैन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड। लेकिन जब एग के अलावा वाइन की बोतल्स भी मिसेस पम्फ्री भेजने लगी, तो वहाँ के जो भी लोग थे वो इस सिचुएशन को समझने लगे कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये फूड कहाँ से आ रहा है। इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड, और वो किस लिए आया था, ताकि ट्रिकी की जो ब्लड है उसको इनरिच किया जा सके, मतलब ट्रिकी की जो हेल्थ है उसे रिकवर किया जा सके। लेकिन मिसेस पम्फ्री को ये नहीं पता था कि ओवर फीडिंग से या इतने ज़्यादा फूड से, वाइन से और एग से उसकी कंडीशन सही नहीं होगी, बल्कि एक्सरसाइजेज से और उसका फूड कम करने से उसकी कंडीशन सही होगी। Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. तो जब जो मिस्टर हेरिट का जो लंच था, ऐसा लगता था वो एक सेरेमोनियल ओकेजन जैसा था, जैसे कि सेरेमनी में बहुत अच्छा लंच मिलता है, तो सेम एज उनके यहाँ भी सेरेमनी जैसा मिलता था। फॉर एग्जाम्पल, जब वो खाना खाते थे तो उसके पहले 2 ग्लासेस ऑफ वाइन पीते थे, और अक्सर मील के दौरान भी 2 ग्लासेस ऑफ वाइन लेते थे। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on the Tricky's constitution. Constitution मतलब बॉडी स्ट्रक्चर। अब क्या हुआ, अब ट्रिकी की कंडीशन को सही करने के लिए, ट्रिकी को फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लास्ट में मिसेस पम्फ्री ने क्या भेजा, ब्रांडी। तो जब ये आई तो फिर इन लोगों को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी वो कर सकती हैं। For a few nights the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drink. तो यहाँ पे फाइन स्पिरिट मतलब लोगों के लिए बोल रहे हैं, तो कई रातों तक इन लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, इन्होंने ब्रांडी को ड्रिंक किया और इन्जॉय किया।
तो इसका मतलब है कि ट्रिकी के लिए जो भी फूड आता था, जो भी ड्रिंक आती थी, उसे मिस्टर हैरियट और उनके फ्रेंड्स ही इंजॉय करते थे, क्योंकि अगर ट्रिकी को देते तो उसकी कंडीशन ख़राब हो जाती। तो यहाँ पे इससे भी क्वेश्चन पुट अप होते हैं कि मिसेस पम्फ्री क्या क्या फूड ट्रिकी को भेजती थी। तो मैंने आपको बताया है 2 डज़न एग्स, ब्रांडी एंड वाइन, ये उन्होंने भेजा था। दे वर डेज ऑफ डीप कॉन्टेंट, कॉन्टेंट में सेटिस्फैक्शन। तो ये जो दिन थे बहुत सेटिस्फैक्शन से भरे हुए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये लोग एंजॉय कर रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा खाना खा रहे थे। Starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously around the fire with the brandy. तो इनके जो दिन की शुरुआत होती थी वो एग से होती थी। इसके बाद जब ये लंच करते थे तो वाइन पीते थे, और रात को जब ये और इनके स्टाफ मेंबर जो है फायर के अराउंड बैठते थे तो ये ब्रांडी को एंजॉय करते थे। लग्जूरियसली मतलब बहुत ही लैविश लाइफ। It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest. अभी क्या कह रहे हैं कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट रखना बहुत ही ज़्यादा टेम्पटेशन था, क्योंकि ट्रिकी जब तक रहेगा तब तक मिसेस पम्फ्री अच्छा अच्छा खाना भेजती रहेंगी। बट आई न्यू मिसेस पम्फ्री वॉज सफरिंग एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट फेल्ट कंपेल्ड टू फोन। लेकिन मिस्टर हैरियट को पता था कि मिसेस पम्फ्री काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होंगी ट्रिकी के लिए। तो जब 14 दिन बीत गए, 14 डेज हो गए, फोर्टनाइट हो गया, तो इन्होंने कॉल किया और क्या बताया उन्होंने, दैट द लिटिल डॉग हैज़ रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन, की जो डॉग है, जो ट्रिकी है, वो रिकवर हो गया है और उनका वेट कर रहा है। विदिन मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। सर्जरी मैंने आपको बताया हॉस्पिटल जहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं डॉग्स का। तो जैसे ही इन्होंने मिसेस पम्फ्री को कॉल किया, कुछ ही मिनटों के बाद, और अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल, यहाँ पे ग्लीमिंग ब्लैक मेटल क्या है, ग्लीमिंग मतलब होता है शाइनिंग और ब्लैक मेटल मतलब कार। तो 30 feet की एक कार थी जो इनके हॉस्पिटल के बाहर आके रुकी। तो इससे भी हमें पता चल रहा है कि मिसेस पम्फ्री बहुत ज़्यादा रिच थी। द शॉफर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्री। तो चॉफर मतलब क्या होता है, ड्राइवर। उसने डोर खोला कार का और इन्होंने मिसेस पम्फ्री को बाहर निकलते हुए देखा। ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, जो कि बहुत ज़्यादा खोई हुई थी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लास्प इन फ्रंट ऑफ हर, और उनके जो हैंड थे बहुत ज़्यादा टाइटली उन्होंने बंद किए थे। एज यू कैन सी द इमेज, जब हम लोग बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, परेशान होते हैं, तो हम लोग अक्सर अपने हाथों को ऐसे ज्वाइंट कर लेते हैं। सेम एज मिसेस पम्फ्री भी बहुत ज़्यादा नर्वस थी ट्रिकी के लिए, तो उन्होंने अपने हाथों को ऐसे टाइटली क्लैस्प किया था। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उनके जो लिप्स थे वो कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज़ ही रियली बिटर। अब क्यों ये ट्रेम्बल कर रहे थे इनके लिप्स, क्यों ये बहुत ज़्यादा नर्वस थी, क्योंकि इन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ट्रिकी वाकई में सही हो गया है। इन्होंने कहा, मिस्टर हैरियट टेल मी द ट्रूथ, मुझे प्लीज़ सच बताइए कि क्या वो वाकई में सही हो गया है। येस ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। इन्होंने क्या कहा कि येस वो बिल्कुल सही है, आपको कार से बाहर निकलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं जाके उसे लेके आता हूँ। फेच मतलब कैरी। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन। अब ये अपने हाउस से होते हुए गार्डन में गए। कहाँ, किस लिए गए, ट्रिकी को लेने के लिए। अ मॉस ऑफ डॉग्स वर हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन्स। मॉस मतलब ग्रुप ऑफ डॉग्स, या आप कह सकते हैं बहुत सारे डॉग्स जो थे उनके लिए वर्ड आया है। तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फास्ट कर रहे थे। दे वर रनिंग फास्ट राउंड एंड राउंड द लॉन, मतलब लॉन के चारों ओर वो भाग रहे थे। जैसे डॉग्स होते हैं बहुत सारे, वो खेलते हैं आपस में, तो ऐसे ही वो करते हैं। एंड इन देयर मिडिस्ट ईयर्स फ्लैपिंग टेल वेविंग वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। और उन सब के बीच में ट्रिकी था, और ट्रिकी का अपीयरेंस कैसा था, वो गोल्डन कलर का था। वो अपने ईयर्स को फ्लैप कर रहा था, अपनी टेल को मूव कर रहा था, मतलब अब वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। तो हमने शुरू में क्या देखा कि ट्रिकी जो शुरू में हमने देखा वो बहुत ज़्यादा फैट था, ओवर फैट था, और उसके अलावा उसकी आइज़ वाटरी थी, रेड थी, उसकी टंग हंग कर रही थी, जॉ से हंग कर रही थी। उसके अलावा उसकी बॉडी में कोई एक्शन ही नहीं था, बहुत इनएक्टिव था। जब वो वॉक कर रहा था तो बहुत अनस्टेडली वॉक कर रहा था, वीक फील कर रहा था, ऐसा लग रहा था उसके अंदर कोई एनर्जी ही नहीं है बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग। लेकिन जब इन्होंने मिस्टर हैरियट ने जब इसका ट्रीटमेंट किया, जब इसे अपने पास रखा, अपने ऑब्जर्वेशन में रखा, इन्होंने उसे खाना कम दिया,
2 दिन तक उन्होंने केवल पानी ही दिया, तो जिसकी वजह से अब धीरे धीरे ट्रिकी के अंदर एनर्जी आने लगी, क्योंकि ट्रिकी अदर डॉग्स के साथ खेलता भी था, तो उसे एक्सरसाइजेस की ज़रूरत थी, जैसा कि आपको पहले बताया गया। तो अब क्या हुआ, इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू अ लीथ हार्ड मसल एनिमल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 weeks में उसके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया। पहले वो बहुत ज़्यादा इनएक्टिव था, लेकिन अब उसकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो गई है। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक। पैक यहाँ पे डॉग्स के ग्रुप के लिए, तो वो जो पैक है उनके साथ बहुत अच्छे से खेल रहा था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड, बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर पा रहा था। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, उसके जो चेस्ट थी ऐसा लग रहा था कि वो ग्राउंड को ब्रश करे, मतलब उसके जो चेस्ट थे वो अब ग्राउंड को टच कर रहे थे। आई कैरीड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, और उसे कैरी करते हुए वो हाउस के फ्रंट पे ले आए, जहाँ पे मिसेस पम्फ्री वेट कर रही थी। द शॉपर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, और जो ड्राइवर था मिसेस पम्फ्री का, उसने अभी भी कार के डोर को ओपन किया था। When Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap. तो leap मतलब क्या है, जंप। तो जैसे ही ट्रिपी ने मिस्ट्रेस को देखा, जैसे ही ट्रिकी ने मिसेस पम्फ्री को देखा, वो तुरंत मिस्टर हैरियट की गोद से कूद के उनके पास चला गया। सेल इनटू मिसेस पम्फ्रीज लैप, मतलब उनके पास कूद के, उनकी गोद में कूद के चला गया। शी गेव अ स्टार्टलेड, स्टार्टलेड मतलब सरप्राइज या शॉक्ड। वो जब उन्होंने देखा कि ट्रिकी इतना बदल गया तो एकदम शॉक्ड रह गई। ओह, एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वॉम्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग। तो अब वो अपने आप को डिफेंड भी कर रही थी, क्योंकि वो उनके ऊपर कूद गया था, जंप कर रहा था, और उनके फेस को लिक कर रहा था, बार्क कर रहा था। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉपर टू ब्रिंग अबाउट द बेड्स, टॉयज, कुशन, कोट एंड बाउल्स, none of which had been used। अब जब ये सब एक्साइटमेंट का सीन चल रहा था, मतलब जब सभी लोग खुश थे, ट्रिकी बहुत खुश था, मिसेस पम्फ्री बहुत खुश थी, तो इसी बीच में मिस्टर हैरियट ने उनके ड्राइवर को बुलाया ताकि वो बेड्स, टॉयज, कुशन, कोट, बाउल, ये सब जो भी ट्रिकी का सामान है उसे वो ले जाएं, और उनमें से एक भी सामान यूज़ नहीं किया गया था। एज द कार मूव्ड अवे मिसेस पम्फ्री लीन्ड आउट ऑफ द विंडो। जैसे ही कार मूव होने लगी, मिसेस पम्फ्री अपनी विंडो के बाहर थोड़ा सा झुकी, उसके बाहर थोड़ा सा आए। टीयर शोन इन हर आइज, और उनकी आंखों में टीयर्स दिख रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल, उनके लिप्स काँप रहे थे। पहले भी ये चीज़ है, लेकिन पहले उनके जो लिप्स ट्रेम्बल कर रहे थे वो नर्वसनेस के कारण थे। अब ज़्यादा वो खुश थी, वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड भी थी, अमेज्ड भी थी, इसलिए उनके लिप्स ट्रेम्बल कर रहे हैं। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। उन्होंने क्या कहा, मिस्टर हैरियट, मैं आपको कैसे थैंक यू कह सकती हैं, ये वाकई ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी। अब यहाँ पे देखिए, मिसेस पम्फ्री को पता नहीं है कि मिस्टर हैरियट ने यहाँ पे उनका क्या ट्रीटमेंट किया, उस डॉग के साथ उन्होंने क्या किया उन्हें नहीं पता, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उसकी सर्जरी की गई है, लेकिन एग्जैक्टली हम लोग जानते हैं कि उसको जो एक्स्ट्रा फूड दिया जाता था उसको हटाया गया है, उसे एक्सरसाइजेज की ज़रूरत है, उसे एक्सरसाइज दी गई ताकि वो एक्टिव हो जाए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी। I hope that you really like this video. If you like the video, please subscribe the channel and press the bell icon for getting the notification. Please share the video with your friends and other friends. Thank you all.